Thank you, Sudhirji. A very good afternoon to one and all. Present dignitaries, fellow Rotarians, aunts, invited guests, parents, and my dear students. Today, I got opportunity to introduce a very learned person, Mr. Parag Dedia. Mr. Parag is a commerce graduate from Narsimonji College of Commerce, Ville Parle. He also holds a diploma in computer management from Narsi Monji Institute of Management Studies. He obtained distinction in postgraduate course in education management. He also holds a graduate degree from Landmark Education, an international organization engaged in special education and still actively participates in various seminar programs indicating his strong passion for education. Mr. Parag Dedia is into the business of providing platform for self-expression. He is committed to transforming people's life through his mission, empowering people through compassion. He has been successfully conducting various courses on personality development for educational institutions, social as well as commercial organizations, including coaching classes. The participants include company executives, chartered accountants, doctors, businessmen, housewives, and students. Companies like Tata Chemicals Limited, Indian Army, Navy, Air Force, Thane Police, Cyber Cell, Institute of Chartered Accountants utilize his services on regular basis. He is well connected with the computer industry since 1988 and is the director of CompuCraze Computer Education, Andheri East. His institute named ICANN Academy for Excellence conducts courses on various languages like English, French, German, etc. The institute has also developed English Booster Teachers Module and Phonics Teachers Module. On the social front, he is associated with Lions Club of Villepale West, where he has received many certificates and awards. As a convener of Personality Development Committee of Kachhi Visa Oswal Seva Samaj, since more than last 25 years, he has been leading and coordinating elocution and debate competitions. He is also a business coach for a program named Know Your Business, which helps participants in fulfilling their dreams. With this impressive introduction, I present to you our esteemed speaker for today, Mr. Parag Dedia, who will be talking on the subject, I Can Speak English. Please put your hands together in welcoming Mr. Parag Dedia. Thank you so much. Few people have left after lunch, I suppose. Yeah. Expected it was. Fine. Sudhir ji has, put me in a test on test. On one side, I have a speaker waiting like Kabra ji, and a session to lead after lunch is always challenging. When that screen was going off Sairat and all, I was more interested in that. If we can have dancing for 5-10 minutes, probably we'll be more energized. And, I am literally afraid of giving lectures for reasons I know, and probably Ashwin bhai also knows. मेरे दिमाग में ऐसा बैठ गया था कि मैं बहुत अच्छे भाषण देता हूँ. तो एक बार मैंने ऐसा चालू किया, आपके जैसा अच्छा क्राउड था 200-300 जन का, और एक जन बीच बीच में आके मेरे को बोलता था लगे रहो, चालू रखो. सो आई वॉज एनकरेज नेचुरली, क्योंकि ऐसा रिस्पॉन्स बहुत कम आता है. सो आई कंटिन्यूड फॉर 10-15 मिनट्स. थोड़े टाइम के बाद वापस ही केम एंड ही सेड लगे रहो, सुपर्ब,
सो 2-3 बार ऐसा हुआ, मेरे को थोड़ा डाउट आया. मेरे को लगा, उसको पूछा कि डू यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग. ही सेड सर, आप जो भाषा बोल रहे हैं ना, मेरे को तो वही समझ में नहीं आ रही है. मेरा नीचे चाय का दुकान है, जिसको भी इधर सर दर्द होता है ना, वो नीचे आके चाय पीता है. तुम इधर चालू रखो, मेरा धंधा उधर अच्छा चल रहा है. तब से मैंने भाषण देना बंद कर दिया. लेकिन क्या है, मास्टर लोग के दिमाग में इट गोज एनी टाइम हाई. तुम थोड़ा अच्छा बोलो ना, अरे तेरा ड्रेसिंग अच्छा है, ऐसा वैसा, तो मास्टर लोग को बिना पिए भी चढ़ जाती है. मतलब छाछ की बात करो, आप क्या समझ रहे हो, छाछ ही ना. हाँ करेक्ट. तो ऐसा मेरे दिमाग में आ गया था. तो सेकेंड टाइम ऑल्सो आई स्टार्टेड. देन वन बाय वन लोग आता हूँ करके निकले. मैं बोला एसी वेसी चालू है, सो प्रोबेबली दे आर फेसिंग सम नेचुरल कॉल्स, सो दे मस्ट बी गोइंग. आफ्टर सम टाइम आई नोटिस्ड ओनली 2 people वर लेफ्ट. आई सेड जाने दो, बाकी के सब टाइम पास के लिए आए होंगे, ये दो तो सिंसियर है. सो आई आस्क्ड देम कि डू यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ये लाइट वाला है, मैं माइक वाला हूँ, बाकी के ऑलरेडी घर पे चले गए, तू बंद कर तो हम लोग भी घर पे चले जाए. सो आफ्टर फ्यू इंसिडेंसेस आई मोल्डेड माई लाइफ एंड आई स्टॉप्ड लेक्चरिंग. तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि व्हाट वुड यू प्रीफर. सी वी कैन कंडक्ट दिस हाफ एन आवर ही हैज़ गिवन मी. तो 3 मिनट तो निकल गई. तो वी कैन हैव दिस conversation in 2 modes. One is lecture mode. लेक्चर मोड में क्या करना है, मुझे भाषण देना है और आप लोगों को आंखें खुली रखनी है. एंड देन ऑप्शन इज विथ यू. किसने 3 गुलाब जामुन से ज़्यादा खाए? हाँ, वो तो निकल ही गए नीचे से. सुपर. सो मोस्ट ऑफ यू हैव 2 or less than 2, राइट? और दूसरा है वी कैन हैव कन्वर्सेशन. सो विच वर्ड विल यू प्रीफर? कन्वर्सेशन. लेकिन ये आगे के रिस्पॉन्स है. आई वुड लाइक टू आस्क समबडी फ्रॉम बैक. सर जी, मैडम, व्हाट काइंड ऑफ यू विल लाइक सर? कन्वर्सेशन. और कन्वर्सेशन का मतलब है कि मैं आपको सवाल पूछ सकता हूँ, जैसे अभी गुलाब जामुन का पूछा, अभी नहीं पूछूंगा वो, लेकिन आई मे आस्क फ्यू क्वेश्चंस टू यू, यू रिस्पॉन्ड, or you ask me question. Whatever I have gained in this 30 years, I will share with you. So कौन सा comfortable रहेगा? जिस तरह से भव्य आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मेरे को लगता है वो पहले मोड में ऑलरेडी आप जा चुके हैं, सेफ मोड में ऐसा. So what will you prefer, second or first? Second. Okay. So that means I can ask question. So my first question is, the title of this program, what I'm going to speak for next 20-25 minutes is, I can speak English. Okay? Now I want to ask you, how many of you want to speak English but can't speak English? I want to, हाँ, नयन भाई भी हाथ ऊपर कर रहे हैं, so anybody can. I want to, पेरेंट्स भी ऊपर कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. मेरा सवाल है, इधर बैठे लोगों में से कितने जन ऐसे जो बोलते हैं कि मुझे इंग्लिश बोलनी है लेकिन मैं नहीं बोल पाता हूँ, नहीं बोल पाती हूँ. लेट मी सी क्लियरली. हाँ, जो भी आपकी डेफिनेशन है परफेक्टली की. ओके, वंडरफुल, थैंक्स फॉर बीइंग ऑनेस्ट. नाउ what do you think in any language, whether it is English or Marathi or Hindi or Urdu or Gujarati, what are the components and what is the importance you give to them? What are the different components you think in a language? Yes, sir. Accent and pronunciation, right. So in English, yes, if we talk, I'll come to you. So first I'll talk about, can you elaborate on pronunciation? Okay, English is, yes ma'am. Spell words is, right, you are right, absolutely, absolutely. So English is such a language where your pronunciations need to be very sharp. A little pronunciation either udar and
the meaning will go either udhar. Like most of they say, where do you live? So I live in Andheri. Leave is leave. And when you talk about live, it's live. It's live. ये छोटी ई जो हमको स्कूल में 8th स्टैंडर्ड में सिखाते थे, लेकिन हम लोग टीचर को वापस दे के आए कि तेरे को काम आएगी नेक्स्ट ईयर, मेरे को कुछ काम की नहीं है, तो सब उधर रह गया. सो ये छोटी ई बड़ी ई in English makes a lot of difference. Lick is different from leak. Lip is different from leap. And it's not question of only I. Same is A. Now you say mad is different from made. Are you getting? Okay. Similar is U. Fool. Sorry, हाथ मेरा ऐसा हो गया तो आप ऐसा सोचना मत कि इधर. Fool is different from full. Pool is different from pull. तो ये छोटी ऊ बड़ी ऊ छोटा ओ बड़ा ओ. Hall is different from whole. Called is different from I am feeling cold. So yes, absolutely, pronunciation makes lot of difference. So many a times we feel कि मेरे को फटाफट इंग्लिश कैसे बोलने का वो सिखाओ ना तुम. But in that फटाफट का चक्कर, if you miss out this portion, then probably you will end up sometimes in problem. So apart from pronunciation, somebody was saying something else. Yes, sir. Vocabulary, wonderful. So can you elaborate on vocabulary? What do you mean by? क्योंकि काफ़ी जन ऐसे होंगे कि जिनको वो word vocabulary मालूम नहीं होगा. Will you speak in mic? So अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए हमें एक कुछ कलेक्शन चाहिए वर्ड का. words का. हाँ. So collection of words Yeah, is vocabulary. So yeah. Wonderful, wonderful, absolutely correct. For example, there is a word called big. In English, there is a word called big. Now, what are the other words you can use for big? Whatever. Large, enormous, giant, massive, huge, colossal, immense, prominent, eminent, vast, amass. So, depending on situation, if you use the correct word, then it will have better impact. Suppose somebody has 25 years of experience. Ashwin Bhai has 35 years of experience in social life. So it is a vast experience. उधर आप अगर बोलेंगे कि big experience may not be suitable. लेकिन somebody lost the member of the family या stock exchange में बड़ा loss हो गया, तो it is colossal loss, irreparable loss. Then it is not big loss. Project चल रहा है कोई बड़ा government का, तो it is mammoth project. अगर किसी का hall बड़ा है, 3000 square feet का room है, तो it is spacious, huge, then it is not big. तो big word उधर छोटा दिखता है. So if you know those words, then probably you can express better. Generally हम किसी को भी पूछते हैं कि ये प्रोग्राम कैसा था आगे का प्रोग्राम, so they say it was good, very good. लेकिन वो इंटरव्यू वालों ने भी शायद आई एम श्योर के बताया होगा कि if you use the correct vocabulary, your chances of getting selected in the job are also far more better if you use the good vocabulary. So you are expressing exactly. जैसे हम लोग बोलते हैं कि how she looks, तो हम लोग बोलते हैं she is looking good or he is looking good. But if you can use the words like dynamic, smart, awesome, amazing, experienced, so these kind of words can give a different perspective about that person also and you also. Versatile, like somebody, Ashwin Bhai introduced, he is a versatile speaker. I have heard him number of times. So आप कोई भी topic दे दो और 2 घंटे दे दो. Choice is with you to sit or not to sit, लेकिन उनको 2 घंटे दे दो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ. Sorry sir. So, and I know him, वो 2 घंटे में आपको हिलने भी नहीं देंगे. So that was vocabulary. Yes, absolutely. What else? Grammar. Okay. Before that, let me. Yes, sir. You expression in what sense? वो तो lying हो गया. Crying भी नहीं है, laughing भी नहीं है.
Acha, voice modulation you mean? Okay, yes. So, you know, in public speaking communication, there is something called pause. Pause मतलब वो जो ग्रामर में अल्प विराम सिखाते थे ना मैडम, जब भी हम लोग सोते थे, रिसेस के बाद तो हम लोग सो जाते थे ना, टीचर जागते रहती थी. सो दैट कॉमा हैज़ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. अगर मैं बोल रहा हूँ कि मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो इज डिफरेंट फ्रॉम सेइंग मारो मत जाने दो. So that's the importance of pause. Where you stop can change the meaning completely. Right, sir? Also, along with what modulation आप बोल रहे, there is something called stress. आप मेरे को बोल रहे अरे stress मेरे को याद मत दिला, already I am stressed. I am not talking about that stress. Stress means which word to highlight. जब जैसे आप word में bold, italic, underline, change font size, font color करते हैं, just to highlight. Similarly, if you stress, the meaning can change. Okay? I will speak one sentence simple. Okay? And then I want some 3-4 volunteers to repeat that sentence slightly differently. I am saying, she is my girlfriend. तू क्यों इतना नाराज है? वो नाराज हो गया. Okay? Now I want 4 volunteers. उधर ही बैठना है, कुछ करना नहीं है, खाली हाथी ऊपर करना है आपको. 1. No, you. I want 4 boys. 1 चलो, एक हो गया. 3 फटाफट यार. फिर मैं 30 मिनट से ज़्यादा बोलूँगा, आप लोग बोलेंगे लेक्चर ज़्यादा दिया तूने. 2, 3, 1 more. Okay, 4. Now you speak the sentence and stress on she. Stress on she. Say the same sentence. I said she is my girlfriend. You say the same sentence, but stress on she. She is my girlfriend. So now there are 4 girls standing there, sir, and I am pointing out कि वो जो blue dress में है ना, वो मेरे स्कूल में पढ़ती थी, मेरे पे मरती थी तभी मेरे बाल काला हुआ करते थे, ऐसा. तो I am pointing at a girl, that female, and I am highlighting her. Okay? Now I want second volunteer, and stress on is. She is my girlfriend. So not that she was, she still is and will be also. जैसे माधुरी दीक्षित, तो पहले भी मेरा क्रश था, उसको मालूम नहीं, वो अलग बात है. मेरे को और मेरी वाइफ को 2 को मालूम है. Okay, so is and was and will be. So now I'm talking about time. Right? So meaning is different. Okay, third volunteer. You have to stress on my. She is my girlfriend. मेरे को मालूम ही था इधर पंगा होने वाला है. I already announced. पहले मैं बोला कि नहीं सर, she is my girlfriend. That is your problem. So the meaning is different now. Okay? Now I want to stress somebody. इधर किसी ने ऊपर किया था? Yes sir. Vocabulary word sir. हाँ, girlfriend. She is my girlfriend. So now I'm talking about relationship. She is not my sister. She is my girlfriend first and then my wife. मतलब मेरी वाइफ की बोल रहा हूँ. 8 साल वो मेरी गर्लफ्रेंड थी पहले, अभी 31 ईयर्स से वाइफ है. So same sentence with 4 words stressed differently conveys different meaning. So that's the importance of what you say, right? Apart from that, somebody talked about grammar. अभी इधर तो बहुत पंगा होने वाला है. Okay. How many of you think that grammar is very important if you want to speak English, if you want to learn English speaking? If I give 3 categories, not important, important, very important, where will you put? Very important, very important, very important. Not important, okay. अच्छा, not important वाले कितने हैं? एक ही. अच्छा. Important, okay, okay. Okay. Very important,
आपने तो हाथ ऊपर ही नहीं किया मैडम, किसी कैटेगरी में नहीं आप, मेरे को सब दिख रहा है. यू हैव गॉन इन फर्स्ट मोड. ओके, now let me, to answer this, I will ask you another question. Which is your mother tongue? Bengali. So whichever is your mother tongue, what did you learn first? Vyakaran of that language or speaking? Now I need not answer. That's the rule for English also. Correct me if I'm wrong. You learned speaking first. व्याकरण probably when we went to school और थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में जब पहली बार उन्होंने फुल स्टॉप कॉमा ये सब सिखाया, तो ये व्याकरण करके एक वर्ड हमारी ज़िंदगी में आया. बिफोर दैट व्याकरण वर्ड ही नहीं था, बट बाय दैट टाइम वी वर ऑलरेडी 8, 9, 10 years old and we could fluently speak English. Correct me if I'm wrong. हाँ तो बोलो. हाँ, जितने भी जाग रहे हो वो सब ने हाँ बोला, बाकी के की आँख खुली है और फ्लाइट मोड में वो लोग. अब भी हाउ मेनी ऑफ यू आर महाराष्ट्रीयन? हां, वाह, व्हेरी गुड. आता मी मराठीत विचारतो व्याकरणचा एक प्रश्न. काफी लोग ने तो मेरे को देखना ही बंद कर दिया है. हां, व्याकरणचा काय आपला कनेक्शनच नाही, तू विचारू नकोस. मैं गुजराती माणूस, बरोबर आहे. मराठी का, हां, मराठी माणूस असा विचारतो ना. इफ आय से व्हॉट इज अकर्मक क्रियापद, व्हॉट इज सकर्मक क्रियापद? प्रत्यय म्हणजे काय, अव्यय म्हणजे काय? And there is nothing wrong in you people not knowing it. There is nothing wrong in you people not knowing it, because in day-to-day life, if you want to speak any language, और ये सब ध्यान में रखने जाएंगे ना, तो you will not be able to speak a sentence. कोई भी लैंग्वेज, इतना सब ग्रामर अगर आपके दिमाग में भर देंगे, हर सेंटेंस में वर्ब आया कि नहीं, वो हमारे वहाँ इंस्टीट्यूट पे इंक्वायरी आती है सर, वो पहले पूछते सर वो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ना, उसमें मेरा गड़बड़ होता है. मेरे को बोलना पड़ता है ये तो टेंस ही मैंने पहली बार सुना है. सो इट्स ओके. ग्रामर इज लाइक तिक्का चटनी इन सेवपुरी. सेवपुरी रहता है ना, उसमें तिक्का चटनी लहसुन का रहता है. तो कैन यू हैव जस्ट तिक्का चटनी एंड गेट द टेस्ट ऑफ सेवपुरी? सिर्फ लहसुन का चटनी खाएंगे नहीं, जो होगा वो सुबह होगा, लेकिन तभी सेवपुरी का टेस्ट तो नहीं आएगा. बरोबर ना सर? तो ये ग्रामर 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 के चक्कर में जो फंस गए ना, वो सब प्रोफेसर हो गए ग्रामर के, लेकिन दे कैन नॉट स्पीक फॉर 5 minutes इन इंग्लिश. दे आर मास्टर्स ऑफ इंग्लिश. They call themselves master of English, but they actually masters of grammar. But they cannot communicate. And English, somebody was saying English is a funny language. Grammar is part of it. You bring any, so many of my colleagues, professors, teachers, friends are born native speakers of English, Christians. और मैं उनको कभी कभी ऐसे सवाल पूछता हूँ, ये बीजी की स्पेलिंग में सर BUSY, तो यू क्यों है उधर? बिजी आई एम बिजी पर्सन, तो बिजी की स्पेलिंग में यू क्यों है उधर? तो बोलता है तुम ऐसे सवाल मेरे को मत पूछो, और ये बोल रहे मेरे को खाने के बाद ऐसे सवाल मत पूछ. सो ऐसा तो मेरे पास बहुत बड़ा लिस्ट है. जो आपके दिमाग में है ना, उससे बड़ा लिस्ट तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी है. वेदर इट इज स्पेलिंग और पास्ट टेंस और सो मेनी थिंग. डिग्रीज आपको मालूम है? डिग्रीज इंग्लिश में डिग्रीज आती थी. हाँ, कितना ग्रामर लेके बैठा है ये देख. अभी मेरे को सिखा थोड़ा. जैसे हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, long, longer, longest, good, gooder.
इतने लोग झाग रहे, क्या बात है, सुपर, आई एम हैप्पी. बैड, बैडर, वर्स, वर्स्ट. अभी मेरे को पूछना मत, तू बता के जा ये ऐसा क्यों है, मुझे मालूम नहीं, ये ऐसा ही है, दैट्स व्हाट आई नो. सॉरी, हाँ हाँ, मैं नहीं बोल सकता हूँ सर. So like this, there are many parts. So my perception about any language and especially English, because people are so much worried about English grammar, is it's okay. It's okay. It's not important, and it's not that it's very important. उसके बिना आप नहीं बोल पाएंगे, ऐसा नहीं है. Okay? So focus of the program जो आप सीखना का प्लान कर रहे हैं should be on two things. Think directly in English. अभी का जो अंदर का मशीनरी है वो आपकी हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली में चल रही है. इफ यू कैन स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, then it would be much, much easier to speak in English. And what is the easiest and fastest way to learn English speaking? What is the easiest and fastest way to learn English speaking? The fastest and the easiest way to speak English is speak in English. अरे गुलाब जाम्बू आपने खाया ना सर? मैंने देखा था, आपने भी खाया. अच्छा, आपने नहीं खाया, आप तभी वो टी शर्ट का डिस्कशन कर रहे थे, इसलिए लोगों ने फंसाया आपको उधर. सो इफ यू वांट टू टेस्ट, इमेजिन कि यू हैव नॉट टेस्टेड गुलाब जामुन, इमेजिन. तो आप वो गुलाब जामुन कैसे बना, उसमें चाशनी अंदर कैसे चली गई, वो सब डिस्कशन करेंगे. तो विल यू गेट द टेस्ट ऑफ गुलाब जामुन? नहीं, खाली डिस्कशन में उलझ जाएंगे. तो वो कैसे बना, क्यों बना, ऐसा क्यों है, गोल कैसे बना. तो व्हाट इज़ द ईजीएस्ट वे? गुलाब जामुन का टेस्ट करने का ईजीएस्ट फास्टेस्ट वे क्या है? मुंह में डाल देना, ख़त्म, समझ में आ जाएगा तेरे को गुलाब जामुन कैसा है. दैट्स हाउ इंग्लिश स्पीकिंग इज. तो उसका डिस्कशन और बबाल इतना है जितना तो इंग्लिश नहीं है. आर यू गेटिंग मी? हाउ मेनी ऑफ यू आर विथ मी? कि हाँ तू बोल रहा है, बकवास नहीं है. हाँ, गुड, थैंक यू. मतलब ये लोग चाहते हैं कि तू जल्दी बंद कर. तालियां भी दो प्रकार की सुधर जी बजती है. अभी थोड़े टाइम में ये लोग तालियां भी बजाएंगे, देखो. एक जब भी अच्छा लगता है तभी तालियां बजाते, और देखो ये बजाने की तैयारी में ही थे. जब भी बंद करवाने का रहता है ना हमारे जैसा, मतलब ये हम लोग क्या बोलने का शुरू करते हैं तो कभी कभी आइडिया नहीं रहता है. ऐसा दूसरा भी एक अश्विन भाई का प्रोग्राम था, तो मैंने बोलने का शुरू किया तो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया काबरा साहब. तो आई सेड सॉरी, तभी मैं वॉच भी नहीं पहन के गया था. सो आई सेड सॉरी, आई एम नॉट हैविंग वॉच टुडे. तो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया. एक जन ने बोला पीछे कैलेंडर तो है, वो तो देख. थोड़ा लंबा हो गया. ऐसा રાતનો પ્રોગ્રામ હોય ને લાયન્સ ક્લબનો, તો થોડો લાંબો થઈ જાય, ખબર ન પડે એમ, એકાદ બે કલાક આમ તેમ થઈ જાય તો. So when we say the fastest and easiest way is to speak English, but then there are few hurdles. There are few hurdles, right? Most of the time we say I can't speak in English. कितने जन ऐसे बोल रहे? जनरली आई कांट स्पीक. मेरे को बोलना है, लेकिन टीचर से भी मेरे को बात करना है, इंटरव्यू में भी बात करना है, बट समहाउ आई एम अफ्रेड और वॉट एवर इज़ योर लॉजिक, बट आई कांट स्पीक. कितने जन को ऐसा लग रहा है? जो अब भी हाथ ऊपर करेगा उसको मैं आशीर्वाद दूंगा, नहीं तो पनवती लग जाएगी तुम पे. यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक. ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, डोंट वरी. सो आई अज्यूम मेनी ऑफ यू खाली हूँ ऐसा बोलो तुम लोग. हाँ ठीक है, डिस्काउंट दिया थोड़ा, डिस्काउंट. सो हाथ ऊपर करता तकलीफ थती है. खाना खा के मैं समझ सकता हूँ, 3 गुलाब जामुन के बाद इतना हाथ ऊपर करना चैलेंज है.
चैलेंज है. I say this is the most dangerous sentence. ये जितना दिख रहा है इतना innocent नहीं है. This sentence is like 0 in maths. Let me confirm with the engineer. Sir, he is an engineer and one is chartered accountant. और दूसरे भी एक CA मेरे को मिले थे, कंसल्टेंट भी मिले थे. Sir, anything multiplied by 0 is 0. So if you multiply 5 with 0, answer is. अब ये इंग्लिश में कैसे काम करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कोई भी एक किताब पढ़ लो, यूट्यूब पे कोई क्लास भर लो, एंड दैट टीचर विल टीच यू 5 न्यू वर्ड्स, एंड आफ्टर टीचिंग दोज 5 वर्ड्स वो आपको बोलेगा ओके नाउ स्पीक इन इंग्लिश, और आपका आंसर क्या रहेगा? आई कांट स्पीक इन इंग्लिश. ये 5 वर्ड से थोड़ी इंग्लिश स्पीकिंग होता है. आई कांट स्पीक. बाद में वो एक हफ्ते में आपको 50 नए वर्ड सिखाएगा, एंड देन ही विल टेल यू कि ओके नाउ स्पीक इन इंग्लिश, एंड योर आंसर विल बी आई कांट स्पीक इन इंग्लिश. ऐसे वर्ड सिखाने वाला है तो फीस रिफंड का प्रोसीजर क्या है वो बता. ये सब तो मेरी डिक्शनरी में है, मेरे पास ऐप है सब. आई कांट स्पीक इन इंग्लिश लाइक दिस. सो आंसर इज 0. Then in 1 month he will teach you 500 new words, and वो कौन सा टेंसेस सब बोल रहे थे ना आप लोग, हाँ वो टेंस का सब नाम जो भी रहेगा वो सब सिखाएगा, and then will tell you कि okay now speak in English, and our answer is I can't speak in English. अभी तूने पूरा सिखाया ही कहाँ है? फीस पूरा लिया है. ये तू पूरा सिखाएगा ना, उसके बाद I will start thinking कि तूने ये पूरा सिखाया है कि नहीं, और दूसरे क्लास के साथ मैं कंपेयर करूंगा. उनकी बुक में अगर 3 टॉपिक ज़्यादा निकला दैट मीन्स तूने पूरा नहीं सिखाया है. तो वो सब सिखाएगा, उस शुभ दिन से मैं शुरू करूंगा. माय प्रॉमिस इज वो शुभ दिन आपकी ज़िंदगी में आने वाला नहीं है. वो शुभ दिन आने वाला नहीं है. यू जस्ट हैव टू स्टार्ट. इसलिए मैंने बोला कि ये सेंटेंस जितना दिख रहा है उतना इनोसेंट नहीं है. ये बहुत डेंजरस स्टेटमेंट है. सो अनलेस यू रिप्लेस द, एंड समहाउ ये सेंटेंस कहाँ से आया उसका भी मैंने बहुत छानबीन किया है. दिस समहाउ हमारा जो रोने का आदत है ना हर चीज़ में, उधर से आया है. आप तिलक महाराज को जानते हैं ना, लोकमान्य तिलक. काय सांगितले त्यांनी? स्वराज्य माझं. तिलक जी ने अगर मेरा कोर्स किया होता ना तो मैं उनको सिखाता कि रोना ये हमारा जन्मसिद्ध हक है. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. रोना, व्हाट वाज द फर्स्ट एक्टिविटी वी डिड इन दिस वर्ल्ड? रोना. तो जन्मसिद्ध हक क्या हुआ सर? रोना. बरोबर है. और फिर हम लोग हर चीज़ के लिए रोए. अभी मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. यू विल हैव हैप्पी टाइम आफ्टर 10 मिनट्स. हर चीज़ के लिए हम लोग रोए. मम्मी ने ये स्कूल में डाला, रोने का. ये नर्स ने उठाया, वो अच्छी वाली नर्स ने मेरे को नहीं उठाया, तो रोने का. मेरे को पिपरमिंट छोटा दिया, इसके बड़ा दिया, ये गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा किया. हर चीज़ के लिए रोने का. हमारा घर छोटा है उसके लिए रोने का. मेरा बाल का सफ़ेद हो गया उसके लिए रोने का. So crying, we have done PhD in crying. Mastered that art. फिर रिजल्ट क्या आएगा? 0. Keep crying. कुछ ना कुछ तो तकलीफ वाला रहेगा. Some of my friends go to Europe. अभी यूरोप जाने का है अगर फैमिली के साथ तो 15 लाख रुपया चाहिए रफली. वो जाने के बाद जब वो लोग लौटे, एंड आई आस्क्ड देम कि कैसा था यूरोप का टूर? पराग सर, पेरिस में केला 750 रुपये किलो. ये 15 लाख का समरी क्या हुआ? अरे बनिया ही होगा डेफिनेटली. आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. हमारा कम्युनिटी का ही होगा. अगर उसको केले का भाव ही पूछना था तो मेरे को बोलता है इंटरनेट पे, मैं उसको साइज, शेप, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट कंट्रीज़ के
सब दिखा देता। वो उधर पेरिस गया, उधर का परफ्यूम का कोई परफ्यूमरी में जाता, कोई एफिल टावर देखता, उधर की लड़कियों को बोलता अरे क्या छान लड़की तिकड़े, तो मैं समझ सकता था कि भाई वो पैसा वसूल करके आए। लेकिन केले का भाव मार्केट में जाके पूछने की जरूरत है, पर दाणा बंदर में जवानी आदत हो ने जरा पूछी આવી આ લોકો શું ભાવ કાઢે, रोने का आदत। एंड दैट हैज कम टू इंग्लिश ऑल्सो कि आप कुछ भी कर लो, लास्ट सेंटेंस इज आई कांट स्पीक इन इंग्लिश। सो नाउ यू हैव चॉइस टुडे, डिसाइड, डू यू वांट टू एंजॉय योर इंग्लिश और यू वांट टू कंटिन्यू क्राइंग। क्या करना है, चॉइस इज योर्स। वो रोना तो अपना चालू ही है। वेरी गुड सर जी, काबरा साहब इसके बारे में डिटेल में बोलेंगे, लेकिन सिंस इट इज़ कनेक्टेड टू इंग्लिश एंड आवर मेंटलिटी, आई एम मेंशनिंग दिस कि आप 15 लाख का खर्चा करो, यूरोप की टूर मारो 12-15 दिन की एंड एंजॉय। बट सपोज आपके पास अभी 15 लाख रुपया नहीं है स्पेयर में, गो टू वन कंट्री, दुबई, और 3 लाख में ट्रिप हो जाएगा। 60-70 हज़ार रुपया खर्चा होता है, 4 जन जाके एंजॉय। सपोज अभी 3-4 लाख रुपया नहीं है स्पेयर, गो टू केरला, 50,000 रुपीज एंड एंजॉय। यस और नो? सपोज 50,000 भी स्पेयर नहीं है अभी, गो टू इमेजिका, डिस्काउंट कूपन वगैरह निकलती है तो 2000 का देखने का, इधर उधर कुछ 600-700 रुपया डिस्काउंट में हो जाता है, गो एंड एंजॉय। सपोज अभी 10,000 रुपया भी नहीं है, गो टू जुहू बीच, मुलुंड से रिक्शा पकड़ने का 260 रुपया होता है, अब भी मैं चुका के आया हूँ, और रिक्शा में फैल के बैठने का। लोग रिक्शा में भी ऐसे बैठते हैं जैसे कॉर्नर में बैठेगा तो बिल कम आएगा, ऐसा नहीं होता है। वो ट्रेन की आदत रहती है, उसमें बिल कम नहीं आता है, उतना ही आता है। तो फैल के बैठने का, और उसमें सादा सड़ेला मसाला जो भी डोसा आता है ना, वो लेक्चर सब तभी साइड पे रखने का, जो साहब बोल के गए ना आगे कैसा खाना चाहिए, वो सब वो तभी साइड पे रखने का नॉलेज। तो जो भी सादा सड़ेला मसाला डोसा હોય બધા ખાઈ લેવાના, પછી ડિસ્કશન હેલ્ધી પર કરવાનું। 500 रुपये में एंजॉय। सपोज 500 रुपया भी नहीं है तो इधर से तुम राइट लेते हो ना, उधर एक चाय का भट का चाय, उधर कटिंग स्पेशल 8 रुपये में मिलती है। 6 जन को जमा करने का, पार्टी देने का एंड एंजॉय। 50 रुपये में पार्टी दे के एंजॉय। वो पूछेगा क्यों? नो, टुडे आई लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, ना दैट्स वाई। फर्स्ट डिसाइड whether you want to enjoy life or you want to keep cribbing. क्या करना चाहते हैं? So you want to keep cribbing about your English or you want to enjoy? जो है जितना आता है उसको यूज करो. If you will not use, you will lose. समझ गया मैं, समझ गया, बैठने का टाइम हुए. So, in my view, just to summarize, whether it is your field or any field, use English just as a tool. English हमारा माई बाप है और वही सर्वस्व, ऐसा नहीं है. It is just one of the instruments that we have to use. And moment you use it, you will master it. The mantra that all of you are going to repeat after me is, I can speak English. ऐसा लग नहीं रहा है कि 150 जन बोल रहे हैं. I can speak English loudly. Very good, thank you. क्योंकि ये जो बोलते हैं ना I can't speak in English, वो भी इंग्लिश में बोलते हैं मेरे को. तो साला ऐसा पेट लेके बोलने का मोना उपवास पर छू. अरे साला तो तेरा पेट तो ऐसा दिख रहा है, उपवास पर काय काय. तो आई कांट स्पीक इंग्लिश में और बोलता है मैं कैन नॉट, आई कैन नॉट. सो दैट इज लाइंग. लाइंग.
Okay, so moment you keep on repeating this again and again, my sincere request to all of you is इसको 108 बार जैसे हम लोग माला जपते हैं ना, वैसे हर रोज आपको करना पड़ेगा. You need to keep on saying yourself, I can speak English, I can speak English. उसका रीज़न है कि in this many years, 15, 20, 25, 50 साल में हम लोग ने बार बार बोला है I can't, I can't, I can't, I can't, I can't. वो इफेक्ट निकालने के लिए you will have to say again and again, I can, I can, I can. I can already speak in English. I want to improve. I can already speak का मतलब ये नहीं कि I will not improve. But it means I can and I will improve. It is a lifelong process. Nobody can say I know complete language. Languages are never completely learned. They go on. Okay? So loudly 3 बार जोर से हम लोग shout करेंगे. I can speak English. I can speak English. I can speak English. Last time, I can speak English. I can speak English. Thank you very much. समझ में आया? और ये मत सोचना कि ये बच्चा किसका है, इतना बदमाश क्यों है, ये कहाँ से लाया, उसका टेंशन मत लो. हम लोग सब जब भी 1 साल के थे ऐसे ही थे. यस और नो? सब. आपको डाउट है तो पेरेंट्स को पूछ लो कि मैं ऐसे ही बोलता था कि नहीं. तो सब बच्चे ऐसे ही सीखते हैं. नाउ सी द कैलकुलेशन पार्ट. एक बच्चा 1 साल का 8 महीने का रहता है. एट दैट टाइम ही स्टार्ट्स ब्लैबरिंग. ही डजंट स्टार्ट स्पीकिंग, ही ब्लैबर्स. बड़बड़ बड़बड़ करता है. बरोबर है? बट बाय द टाइम ही इज 2 years old, he speaks sufficient. He has sufficient vocabulary, pronunciation. उसके सुधर जाते हैं तो आजू बाजू वाले को समझ में आता है. That means in a span of 12 months एक child ने बोलना language सीख लिया. And since how many years we are saying I want to learn English speaking, I want to learn English speaking. The only difference is he doesn't say I can't. मेरी मम्मी ने वोकेबुलरी ठीक से नहीं सिखाया, मेरे को व्याकरण नहीं आता है. ही डजंट से. ही जस्ट फोकसेस ऑन एंजॉइंग एक्सप्रेशन. सामने वाले को नहीं समझ में आया, वो उसको टेंशन है, उसको स्कूल में जाने दो. मैं क्यों टेंशन लूँ? ओके, थैंक यू. Thank you, Parag Bhai, for such a wonderful presentation. I request our president to please offer him a small gift. It was a wonderful lecture. Thank you so much.